I welcome to all of you. In the last lecture, we studied about a statement. That a statement is a declarative assertive sentence which is having truth value either true or false, but not both simultaneously. That means a statement is a declarative assertive sentence having truth value either true, that means T, or false, that means F, but not both. Now, in this lecture, we have to know about some basic concepts. Number one, simple statement. A statement which cannot be further split into two or more statements is called simple statement. यानी ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम एक से जायद यानी दो या दो से जायद स्टेटमेंट में डिवाइड नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, ऐसे स्टेटमेंट को सिंपल स्टेटमेंट बोलेंगे. एंड सिंपल स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स लाइक पी, क्यू, आर, एस एक्सेट्रा. हम किसी भी स्मॉल लेटर से सिंपल स्टेटमेंट को डिनोट कर सकते हैं. सेकंड, कंपाउंड स्टेटमेंट. If we join two or more than two simple statements, or if we combine two or more simple statements to form a new statement, then it is called compound statement. Third, connective or logical. Connective. The word or group of words or phrases which are used to connect two or more simple statements to form a compound statement, then that words or group of words or phrases are called as connectives, because they are connecting two simple statements. Therefore, they are called connectives or logical connectives. For example, and, or, if, then, if and only if. Not only but also. Either or, yet, still, moreover, though, as well as. These are the words or group of words which are used as a connective in the logic, because they are used to combine or to connect two or more simple statement to form a compound statement. Our philosophers and thinkers, they studied some languages and they got the point that basically there are 5 types of connectives in each languages. If we talk about English language, then these 5 types of connectives are, if we listed them,
connectives, their symbols, and the name of compound statement formed by using these connectives. Number one, and symbol of and is like this. एंड का पहला लेटर ए का के जैसा ही सिंबल है. अगर हम ये अंडर का लाइन सेगमेंट अगर यहां से हटा दें तो जो सिंबल बनेगी वही एंड की सिंबल है. तो एंड के फर्स्ट लेटर से हम उसे याद रख सकते हैं. नेम ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म बाय यूजिंग कनेक्टिव एंड, इट इज कॉल्ड एज कंजंक्शन ऑफ द टू स्टेटमेंट्स. एंड की मदद से जो भी कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा उसे कंजंक्शन बोलेंगे. नंबर टू, और द सिंबल ऑफ और इज लाइक दिस. ये और की सिंबल है, इस तरीके से हम उसे डिनोट करेंगे. इसको इसके बिल्कुल उलट है. एंड की सिंबल एंड के फर्स्ट लेटर ए की जैसी और उसके उलट इसकी सिंबल है. कंपाउंड स्टेटमेंट जो और की मदद से फॉर्म होगा उसको हम डिसजंक्शन बोलेंगे. डिसजंक्शन. थर्ड, कनेक्टिव. इफ, देन, it is denoted by one sided arrow mark, या तो इस तरीके से या तो फिर इस तरीके से. and the compound statement formed by using connective if then is called as implication or conditional. Number 4, if and only if. ये इसकी सिंबल होगी टू साइडेड एरो मार्क. आइदर उसको हम इस तरीके से और इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. इस कंपाउंड स्टेटमेंट को हम बाय कंडीशनल डबल इंप्लीकेशन बोलेंगे. डबल इंप्लीकेशन और बाय कंडीशनल. इसका तीसरा भी नाम है, इसको इक्विवेलेंस भी बोल सकते हैं. फिफ्थ टाइप का कनेक्टिव है नॉट. इसकी सिंबल है लाइक दिस. और जो कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म होगा उसका नाम रहेगा निगेशन. तो ये कनेक्टिव्स 5 टाइप के बेसिकली हर लैंग्वेज के अंदर पाए जाते हैं कनेक्टिव्स. बाय यूजिंग दीज कनेक्टिव्स वी कैन form a compound statement using or connecting two or more simple statements. Now, in these
हम वन बाय वन एक एक स्टडी करते जाते हैं। नंबर 1 है कंजंक्शन। कंजंक्शन कंजंक्शन is a compound statement if two statements are combined together by using connective and, then it is called as conjunction. For example, if P, Q are two statements, two simple statements, then P and Q is a compound statement and it is called as conjunction. It is denoted by symbolic form like this. It is read as P conjunction Q और सिंपली P एंड Q। दोनों तरीके से हम इससे बोल सकते हैं। इसे P कंजंक्शन Q भी बोल सकते हैं और इसे सिंपली P एंड Q भी रीड कर सकते हैं, जैसा आपको रीडिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम डे टू डे लाइफ में ऐसे कंजंक्शन वाला कंपाउंड स्टेटमेंट अक्सर सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इफ वन MR कम्स in a hospital and we listen that the statement given by him for a particular drug. He told us drug is very effective. The statement of that MR is drug is very effective and it has side effect. Drug is effective and it has side effect. ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। इसके दोनों कंपोनेंट्स, दोनों सिंपल स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट में दोनों जो सिंपल स्टेटमेंट होती है, दोनों को कंपोनेंट्स कहा जाता है। इस सब स्टेटमेंट को, इसे सब स्टेटमेंट भी बोला जाता है। कंपाउंड स्टेटमेंट में दोनों सिंपल स्टेटमेंट को सब स्टेटमेंट्स और कंपोनेंट्स कहा जाते हैं। ये एक कंपोनेंट है, एक सिंपल स्टेटमेंट है, ड्रग इज इफेक्टिव। सेकंड सिंपल स्टेटमेंट है, ड्रग हैज साइड इफेक्ट। लेट कर लेता हूं मैं फर्स्ट कंपोनेंट को, फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट को, ड्रग इज इफेक्टिव, एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसको हम पी लेट कर लेते हैं। सेकंड सिंपल स्टेटमेंट है यहां ड्रग हैज साइड इफेक्ट, ये भी एक सिंपल स्टेटमेंट है। इस सिंपल स्टेटमेंट को, इस कंपोनेंट को, इस सब स्टेटमेंट को हम क्यों लेट कर लेते हैं? यहां कनेक्टिव यूज हुआ है एंड, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा P एंड Q। इस तरीके का सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा। अब इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू, इस पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट जो उस MR ने यूज किया है, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? हम एक एक सिंपल स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू बताते हैं, लेकिन अगर कोई कंपाउंड स्टेटमेंट हमने फॉर्म किया या किसी ने कहा है, तो उस कंपाउंड स्टेटमेंट की भी ट्रुथ वैल्यू होगी, क्योंकि वो स्टेटमेंट है और हर स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू होती है। तो इस कंपाउंड स्टेटमेंट की, कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू उसके दोनों कंपोनेंट्स पे डिपेंड्स होती है। द ट्रुथ वैल्यू ऑफ एनी कंपाउंड स्टेटमेंट इज डिपेंड ऑन its component, truth value of its component, as well as the connective used between them. उन दोनों के दरमियान जो कनेक्टिव यूज हुआ है उस पे भी डिपेंड होती है, और दोनों सिंपल स्टेटमेंट्स जो हैं उनकी ट्रुथ वैल्यू पे भी इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू डिपेंड होती है। फॉर एग्जाम्पल, उस MR ने ये जो सेंटेंस कहा था, ड्रग यूज करने के बाद
हमने अगर पाया कि ड्रग वाकई में उस पर्टिकुलर डिसीज के अंदर ड्रग जो है वो इफेक्टिव है, उसका असर हुआ है, तो फर्स्ट इस फर्स्ट कंपोनेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो जाएगी। फर्स्ट कंपोनेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो जाएगी और उसका साइड इफेक्ट भी हुआ है, तो इस सिंपल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू भी ट्रू रहेगी। तब इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? हम क्या उस एमआर को ट्रू बोलेंगे कि हाँ उसने सही कहा था? उस एमआर को ट्रू बोल रहे हैं, दैट मीन्स उसके स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू हम ट्रू बता रहे हैं। अगर हम उस एमआर को सच्चा मान रहे हैं, हाँ उसने जो कहा था सही है, तब हम इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू मान रहे हैं। हो सकता है इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहे, वो ड्रग जो है वो इफेक्टिव रहे और हमने देखा उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यानी इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो सकती है। उसने कहा था उसका साइड इफेक्ट है और हमने पाया उसका साइड इफेक्ट नहीं है, दैट मीन्स उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई? फॉल्स हो गई। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हाँ वो ड्रग इफेक्टिव नहीं रहे, हमको कोई असर नहीं, हमने यूज किया उसका कोई असर नहीं रहा, लेकिन उसका साइड इफेक्ट हुआ, यानी फर्स्ट कंपोनेंट की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो गई और सेकंड कंपोनेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू रही। उसका इफेक्ट हुआ, साइड इफेक्ट हुआ, देयरफॉर इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू। उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। हो सकता है दोनों के दोनों नहीं हुआ, हमने वो ड्रग यूज की ना तो उसका हमारी डिसीज के अंदर कोई इफेक्ट पड़ा, उसका कोई असर नहीं हुआ, और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ, दोनों नहीं हुआ। ना वो हमारी जो है बीमारी को कम की, उसमें कोई असर नहीं हुआ, और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ। तो ये इतनी पॉसिबिलिटी के अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। इन पॉसिबिलिटीज में इस एमआर को या उसके स्टेटमेंट को हम सही मानेंगे या सही नहीं मानेंगे, यानी उसको ट्रू बोलेंगे या फॉल्स बोलेंगे, इस स्टेटमेंट की, कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू कब क्या होगी, इसको हम डिस्कस करते हैं। और इस डिस्कशन को हम ट्रूथ टेबल बोलेंगे। ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट कंजंक्शन। There are two simple statements, that means sub-statement of this compound statement P and Q and the truth value of the compound statement P and Q. That means truth value of first component if it is T and the truth value of second component is also T. Then what is the truth value of the compound statement conjunction? If first statement is true, second statement having truth value false, then what about the truth value of conjunction? If first statement is false and the truth value of second statement is true, then what about the truth value of the compound statement? That means conjunction of P and Q. If both the statements are false, then truth value of conjunction is of which type? ये हम इसी एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, इसी एग्जाम्पल को लेके हम इसको डील करेंगे। यहाँ सब पॉसिबिलिटीज आ गई, ऑल द पॉसिबिलिटीज आर कवर्ड। इफ बोथ आर ट्रू, if first statement true and second is false, if first statement is false second is true, if both are false, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जितनी पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज थी हमने उसको सब ले लिया। इफ बोथ आर हैविंग ट्रूथ वैल्यू ट्रू, दैट मीन्स ड्रग को यूज करने के बाद हमने उसका असर हमारी बीमारी में पाया, हमने उसका इफेक्ट पाया, इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू रही, और उसका साइड इफेक्ट भी हमको हुआ, इसकी ट्रूथ वैल्यू भी ट्रू रही। देन इस कंपाउंड स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या बताएंगे? ट्रू, कि हाँ उस एमआर ने जो कहा था वाकई में उसने क्या कहा था, सही बोला था, उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू। बराबर। अगर ड्रग इफेक्टिव रही, इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू रही,
और इस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो गई, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, तब हम उस एमआर को क्या बोलेंगे? उसका दावा दोनों तरफ था एंड ऐसे ऐसा कनेक्टिव है जो दोनों तरफ एट अ टाइम दावा करता है। हम एंड डे टू डे लाइफ में वही यूज करते हैं जहां हमको दोनों तरफ दावा करना हो। जैसे मैं खाऊंगा चाय एंड चाय भी पीऊंगा, एंड से जोड़ा है। मैं खाऊंगा एंड टीवी पीऊंगा, दोनों काम करूंगा। यानी मैं सिर्फ खाऊंगा ऐसा नहीं, मैं सिर्फ टी पीऊंगा ऐसा नहीं, दोनों के दोनों लूंगा मैं एट अ टाइम के लिए हम एंड यूज करते हैं। और सेमार्क ने दोनों तरफ दावा किया था, वो इफेक्टिव है डिसीज के अंदर, बट उसका साइड इफेक्ट भी है, उसने कहा। अब उसका इफेक्ट हुआ, उसका साइड इफेक्ट नहीं हुआ, इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू रही, उसकी फॉल्स रही, हम उस एमआर को क्या बोलेंगे? कि उसने सही नहीं कहा था, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, हम बोलेंगे यार क्या इंसान है। मैंने खाया लेकिन चाय नहीं पिया, तुम क्या बोलेंगे? क्या यार सर, तुम तो बोले तो दोनों लेंगे, खाएंगे भी और चाय भी पियेंगे, और सिर्फ खा लिए चाय नहीं पिए। यानी मुझे अपने स्टेटमेंट में वो क्या बोलेगा कि फॉल्स हो, मेरा स्टेटमेंट वो फॉल्स बोलेगा। अगर ड्रग का इफेक्ट नहीं हुआ, इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो गई और उसका साइड इफेक्ट हो गया। हमने खाया, उसका हमारी डिसीज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बट साइड इफेक्ट हो गया, इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स, उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो गई। हम उस एमआर को क्या बोलेंगे? कि उसने सही नहीं कहा, उसका स्टेटमेंट फॉल्स था, यानी वो सच्चा नहीं था, उसने सही बात नहीं की, उसने झूठ बोला, उसको हम फॉल्स बोलेंगे। अगर ड्रग यूज करने के बाद ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं हुआ हमारी डिसीज में, और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ, दोनों नहीं हुआ, तब भी उसका दावा दोनों तरफ था, उसका असर होगा और उसका साइड इफेक्ट होगा, दोनों नहीं हुआ, तब हम उसको क्या बोलेंगे? कि उस एमआर ने सही नहीं बोला, यानी वो झूठा था, वो सच्चा नहीं था। मैंने कहा तो मैं खाऊंगा भी और चाय भी पीऊंगा, दोनों के दोनों मैंने नहीं किया, तुम क्या बोलेंगे? क्या सर, तुम तो बहुत दावा कर रहे थे दोनों लूंगा, और कुछ भी नहीं लिए, सिर्फ नहीं खाऊंगा तब भी बोलेगा, सिर्फ पीऊंगा नहीं तब भी बोलेगा, और खाऊंगा पीऊंगा दोनों तो बोलेगा हाँ जो बोले थे वो किए। यानी एंड में जब दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा। if both the simple statements are true in the conjunction, then and then only the truth value of compound statement is true, otherwise it is false। यानी कि कोई भी दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट को अगर हम कनेक्ट किए तो कंजंक्शन टाइप के कंपाउंड स्टेटमेंट में जब सब कंपोनेंट्स सब के सब जितने भी हैं, all the sub components are having truth value true, then and then only the compound statement is having truth value true, otherwise in all condition it is false। तो हमको सिर्फ इसको ही मेमोराइज करना है, if both are true then true, if all are true then true, otherwise false। हमको सिर्फ इसमें यही याद रखना है, इन तीन कंडीशन को हमको कोई डील करने की जरूरत नहीं, इसे ही सिर्फ हमें याद रखना, इसे ही मेमोराइज करना है बस। तो मैं समझता हूं अब ये आपके अंडरस्टैंडिंग में आ गया होगा। सेकंड टाइप है, हाँ एक बात तो ये भी कि कनेक्टिव एंड के टाइप का इंग्लिश लैंग्वेज में और हर दूसरी लैंग्वेज के अंदर एंड के जैसा और भी कनेक्टिव्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बट, yet,
still, moreover, though, ये सारे वर्ड्स एज वेल एज इस टाइप के जितने सिंपल कनेक्टिव्स, ये कनेक्टिव्स है, इस टाइप के जितने भी कनेक्टिव्स हैं जो दो सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं, ये सब भी एट अ टाइम दोनों तरफ दावा करते हैं। देयरफॉर इन तमाम टाइप के कनेक्टिव्स को एंड ही कंसिडर किया जाता है और इसके लिए सिंबल जो है हम यही सिंबल यूज करते हैं, इसी सिंबल को यूज किया जाता है। बट कनेक्टिव के लिए भी यही सिंबल, येट के लिए भी, फॉर द स्टिल एंड मोर ओवर दो, इन तमाम टाइप के कनेक्टिव्स की यही एक सिंबल है। फॉर एग्जाम्पल, ड्रग इज इफेक्टिव बट इट हैज साइड इफेक्ट। उसके इस सेंटेंस को एंड हटा के हमने बट रख दिया, सेम मीनिंग देगा। ड्रग इफेक्टिव है लेकिन उसका साइड इफेक्ट है, ड्रग इफेक्टिव है एंड उसका साइड इफेक्ट है, दोनों बात क्लियर। ड्रग इफेक्टिव है, स्टिल ड्रग इज इफेक्टिव, स्टिल इट हैज साइड इफेक्ट। ड्रग इफेक्टिव है लेकिन फिर भी उसका साइड इफेक्ट है। ड्रग इज इफेक्टिव एज वेल एज इट हैज साइड इफेक्ट। ड्रग इफेक्टिव है, साथ ही साथ उसके अंदर साइड इफेक्ट भी है। ड्रग इफेक्टिव है, मोर ओवर उसके अंदर साइड इफेक्ट है। ये स्टिल, मोर ओवर, दो, येट, बट, these connectives are connective like and. Therefore, मैथमेटिकल लॉजिक में उनकी एक ही सिंबल सबको हमारे फिलोसफर ने एक ही जगह लाके जमा कर दिया। और भी हो सकते हैं, जैसे जैसे एग्जांपल्स आती है कि हम देखते जाएंगे कौन कौन से कनेक्टिव्स एंड का काम करते हैं। ऐसे कनेक्टिव्स जो दोनों तरफ दावा करे एट अ टाइम, ये भी और वो भी, दोनों के दोनों पे दावा हो, ऐसे कनेक्टिव्स जो है इस सेंस में जो यूज होंगे वो सब के सब एंड में रहेंगे।